नमस्कार जी, मैं हरविंदर सिंह गिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ 311 टीवी। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਰੰਗ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਮਕਸਦ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ नमस्कार जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰयास ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੰਸਰਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹਾਂਜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੇ ਸਪਰੇ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਾਜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਹੈ, ਫਿਟਕਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ 34 ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫਸਲ ਉਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰयास ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰयास ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ ये अपनी ज़्यादा कोशिश है। मैं थोड़ा हिंदी में बीच में बोलूँगा। ਹਾਂਜੀ 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 हाँ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ मेरी हिंदी भी पंजाबी ठीक है इतनी जी। अच्छी नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं, हिंदी भी चलो जी। हाँ, तो ठीक है। इसमें अपना प्रयास ये है कि भाई जो भी चीज़ें घर में खाने के लिए हैं, हाँ जी हैं, चाहे वो अपने अनाज है, हाँ जी चाहे सब्जियां हैं, हाँ जी चाहे फल है, हाँ जी चाहे अपने पहनने के लिए कपड़ा है, हाँ जी हर चीज़ खेत में पैदा हो सकती है। हाँ जी ठीक है नहीं, ठीक है जी। खाली खेत धरती माता एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हर चीज़ उत्पादन होती है। हाँ जी जितनी फैक्ट्रियाँ वो उत्पादन नहीं करती हैं, वो हाँ जी सिर्फ कन्वर्शन करती हैं, वो ठीक है जी। चीज़ों का रूप बदलती हैं वो। हाँ जी और धरती माता है कि आप एक बीज डालो तो पूरा पौधा पैदा होता है। ठीक है जी। उसमें सैकड़ों और बीज लगते हैं उसके ऊपर में। हाँ जी तो यहाँ पे हमारा प्रयास ये है कि जितनी चीज़ें भी हमारे आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, हाँ जी सारी चीज़ें यहाँ पे पैदा हों पैदा और वो हम लोगों को दे सकें। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸਾਨ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा जोड़ा प्रश्न है थोड़ा। इसमें मैं ये कहूँगा इसके अंदर में कि मेरा बचपन जो है वो गांव में था, ठीक है जी। तो ज़मीन से जुड़ा हुआ था। हाँ जी और जब मैं जाकर के मैंने कॉरपोरेट वहाँ पे नौकरी करी हाँ जी और सब चीज़ देखी, हाँ जी तो मेरे को एक चीज़ का एहसास हुआ कि हाँ भी जी। जो हमारा आम आदमी है, हाँ जी कि हमारा किसान है, हाँ जी हमारा किसान बहुत पिछड़ रहा है। ठीक है जी। कहीं क्यों पिछड़ रहा है? हाँ जी तो किसान व्यापारी हैं, जो बीज वाले बंदे हैं, हाँ जी जितने पेस्टिसाइड वाले बंदे हैं, हाँ जी उन सब के पीछे लग करके हाँ जी अपनी सारी फसल बेच करके उनको दिया था। हाँ जी कहीं जिस दिन भी मेरा कोई सोसाइटी को वापस करने का मौका आया, हाँ जी तो वो खेती के जरिए वापस करनी है, वो ठीक है ज़मीन के जरिए वापस करनी है, वो ज़मीन से जुड़ करके। हाँ जी इस प्रयास को लेकर के मैं यहाँ पे वापस आया। ठीक है जी। कहीं ज़मीन जगह तो मेरे बाप दादा ने बनाई थी, हाँ जी ठीक है, पिताजी ने उसको कायम रखा, ठीक है जी। बहुत मुश्किल आने पे बेचा नहीं है, हाँ जी उस ज़मीन में आके हम खेती कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਇਸ? ऐसा है जी, ये है जो डॉक्टर साहब प्रश्न है, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिथ है, मतलब थोड़ा सा एक भ्रम है। हाँ जी क्यों भ्रम है? कि जो लोगों ने आपको ये विश्वास दिलाया है हाँ जी कि भाई दूसरी खेती ज़्यादा अच्छी है। हाँ जी अब मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। मेरे यहाँ पे गेहूँ है हाँ जी 8 एकड़। हाँ जी ये 8 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 14 कुंटल गेहूँ होएगी। ठीक है जी। और जो दूसरा आम किसान है जिसने केमिकल की फार्मिंग करी है, हाँ जी उसके साथ 50 मन हो जाएगी। ठीक है जी। ठीक है।
तो 50 मन वो जहर वाली खेती है हाँ जी। और मेरी जहर मुक्त वाली खेती है 35 मन या 30 मन, ठीक है उसका कोई मुकाबला नहीं है, पहली बात। ठीक है दूसरी, ये जो खेती है इसकी कीमत उसकी डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो ये 25 मन हाँ जी। और 50 मन 50 मन पैसे में बराबर है। पैसे में बराबर। खर्चा मैंने किए नहीं, हाँ जी। खाली जो खर्चे किए हाँ जी। वो तो मैं लेबर का खर्चा किया ना, ठीक है जी। मजदूरी खर्चा किया। हाँ जी। तो मजदूर कौन है? वो मेरे सोसाइटी के, मेरे गांव के बंदे हैं। हाँ ठीक है जी। अगर उनके घर में रोटी पकती है हाँ जी। अच्छी बात है ना ये, ठीक है बिल्कुल जी। ठीक है नहीं। मैंने कोई पैसा भी किसी फर्टिलाइजर कंपनी को, हाँ जी। किसी भी बंदे को, व्यापारी को, या किसी भी पेस्टिसाइड वाले को हाँ जी। या रे वाले को नहीं दिया, ठीक है जी। ठीक है नहीं। तो मेरा 90% खर्चा जो है वो लेबर का है। वो लेबर का है। मैंने लेबर लगानी है, उसको जमीन को साफ करना है, बिजाई करनी है, पानी लगाना है, हाँ जी। ठीक है नहीं। पेड़ पौधे हैं, ऐसे पक्षी आते हैं इसके ऊपर में, हाँ जी। ये पक्षी के पीछे DAP हैं, हाँ जी। वो खाद का काम वो कर देंगे मेरा, ठीक है अपना हिस्सा ले लेंगे वो फसल का थोड़ा बहुत। ठीक है यही है प्रयास है। ठीक है। मटर खा के 50% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੌਣ ਖਰੀਦਦਾ ਇੱਥੇ? यहाँ से जी खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ पे एक टाउनशिप नज़दीक में है। यहाँ पे है। HMEL जो है हाँ जी। हाँ जी। वो तकरीबन 2 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ जी। ये टाउनशिप 3 किलोमीटर दूरी पे है। हाँ जी। तो उसके अंदर तकरीबन 1500 परिवार, हाँ जी। 4000 लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ जी। अब उन लोगों को धीरे धीरे, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट या कोई नहीं करी है, ठीक है जी। ठीक है नहीं, या कोई किसी किस्म का जो है ना, मतलब कोई पोस्टर या कुछ ही नहीं छुपाए हैं ना बांटे हैं। हाँ जी। उनको धीरे धीरे सुन करके, हाँ मतलब 2 आए, फिर 4 आए, फिर 10 आए, 12 आए, हाँ जी। अभी तकरीबन 20 परिवार जो है आपसे जुड़े हुए हैं। जुड़ गए हैं। गोरखा सिंह मेरे जो बंदे यहाँ पे काम करते हैं, मेरे ठीक है। मैनेजर हैं, हाँ जी। उनको ज़्यादा आइडिया है। 20 परिवार जुड़ गए यहाँ पे, हाँ जी। और हमारी उम्मीद है कि इस साल के अंदर में हाँ जी। लगभग 100 परिवार जुड़ जाएंगे। ठीक है। और 100 परिवार की रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है, हाँ जी। हाँ जी। वो आप आराम से एक 6 एकड़ या 10 एकड़ 12 एकड़ खेत से हाँ जी। पूरी कर सकते हैं आप उसको। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो हमारे गांव के लोग हैं, हाँ जी। अभी लगभग वो सारे गांव के लोग जो है हमारे यहाँ सब्ज़ी लेके जाते हैं। ठीक उनको है। पता है कि बाज़ार में जो सब्ज़ी मिलती है हाँ जी। तो वो सब्ज़ी का टेस्ट और इसका बहुत फ़र्क है। ठीक तो है। हमारे यहाँ भी आना शुरू हो गए हैं, इसलिए फसल बेचने की या हमको सब्ज़ी बेचने की ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। दिक्कत नहीं आ रही। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਡਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ज़्यादा ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। बदल ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ज़्यादा बिल्कुल। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਕਈ ਜੈਵਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੈ? बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ जी। इसीलिए मेरे को काफ़ी लोगों ने सुझाव दिया कि भाई आप अपनी ये फसल को किसी को बेचो और वो आगे बेच दे। ठीक है जी। जैसे टाउनशिप में कोई दुकानें हैं, हाँ जी। उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। कुछ गाँव रामा मंडी में दुकानें हैं, हाँ जी। शहर में हाँ जी। मंडी में, हाँ जी। उन्होंने अप्रोच किया। मैं कहा नहीं, ठीक है। जो बंदा मेरी ज़मीन पर आएगा, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। वो आके अपनी आंखों पे तो विश्वास करेगा, मेरे पे हाँ। विश्वास नहीं करेगा, खुद खुद विश्वास करेगा। हाँ जी। अपने आप आए तोड़ ले, यहाँ पे हम तो ठीक। मना नहीं करते हैं। ठीक है। आप आओ, आप फसल में मेरा आदमी साथ में रहेगा, मटर तोड़ लो, ठीक है। चने के बूटे निकाल लो यहाँ पे हाँ जी। आप खुद मिट्टी की खुशबू देख लो, पौधों की देख लो, तो ठीक पता है। लगेगा ना आपको यहाँ पे है कि नहीं। बिल्कुल है। ज़मीन तो बताएगी ना, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है नहीं। बिल्कुल। जब मेरी ज़मीन पे आ गए जी। तो ये चीज़ें तो बोलेंगे कि भाई हाँ। हमारे हम फ्री हैं, हाँ जी। हाँ तो जी। मेरे कुछ विश्वास दिलाना नहीं है। हाँ जी। मैं कोई कोशिश नहीं करता विश्वास दिलाने की, अच्छा, नहीं, मैं बिल्कुल खुद भी किसान आके तोड़ के विश्वास करे। ग्राहक, ग्राहक। जो ग्राहक यहाँ पे आते हैं या जो हाँ कोई जी। आसपास के किसान भी आते हाँ हैं, जी। जो भी यहाँ पे आते हैं, हाँ वो जी। खुद आके देख के तोड़ के अपनी आंखों में विश्वास करे, मेरी बात का विश्वास ना करे, ठीक है। फिर अपनी जीभ पे खा के उसको कहीं हमारी जो ईश्वर ने शक्तियाँ दी हैं, हाँ जी। रंग रूप जीव, ये सब परखने दी है, उनसे हाँ जी। परखो, ठीक है जी। अपनी आंखों से देखो, हाँ जी। नाक से खुशबू लो, ठीक है जी। देखो। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਿਆ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ? हाँ जी, ऐसा है कि ये कपड़े का प्रयास वैसे तो मैं 3 साल से कर रहा था। ठीक है जी। यहाँ पे जैतों में एक तरंजन करके हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन बनी है, अच्छा जी। मैं भी उसका मेंबर हूँ, अच्छा जी। और जो है उसके 20 किसान उसमें जुड़े हुए हैं हम लोग। ठीक है जी। तो कुछ किसान मेरे से काफ़ी पहले से देसी के पास बीज रहे थे, खेती कर रहे थे, हाँ जी। खास करके फादर का और वोर के उसमें हाँ जी। एरिया में। हाँ जी। तो मेरे को मालूम पड़ा कि भाई एक किसान देसी के पास बीज रहे हैं, तो मैंने यहाँ अपने जो भी मेरे मित्र दोस्त है या मेरे उनसे बात करी, उनका भी हमारे यहाँ तो देसी के पास कामयाब नहीं है। हाँ जी। मैं ठीक, काम हो जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है तो जी। पिछली बार हमने यहाँ पे 3 एकड़ कपास लगभग लगाई। देसी कपास हमने यहाँ पे लगाई, हाँ जी। 2 वैरायटी की, एक RG8 और एक LD949। ठीक है जी। तो LD949 तो हमारी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई उसकी, हाँ जी। फसल बहुत कम हुई,
पर RG8 बहुत अच्छी कहाँ हुई। ठीक है उसकी फसल लगभग 5.5 से 6 क्विंटल की एवरेज उसकी हमारे को आई है, 1 एकड़ की। एकड़ की। तो वो जो है उसको बलदेव सिंह जो है मेरे पार्टनर जो हैं रिश्तेदार, ये उसको बुला करके लेके आए हाँ जी सिरसा में बेलियों से, ठीक है जी, क्योंकि उसको सर्जेंट मशीनों पर नहीं बेला जा सकता। ठीक है उस जी। पर अगर हम करवाएंगे तो वो उसका रेशा तोड़ देगी, अच्छा जी, है ना। तो वो रेशा उसका ना टूटे, हाँ जी तो बेलियों पर बुलवाया हो, हाँ जी और उसको बुलवा करके रुई जो थी हमने हाँ जी, वो दे दी खेती विरासत मिशन के रंजन को, ठीक है जी। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। कतने के लिए? हाँ, उसको साफ़ कराने के लिए पहले अच्छा। बद्दी गई हो, अच्छा जी, बद्दी करा के साफ़ किया, उसको पिंजा किया, ठीक है उसको जी, पुनिया बन गई। हाँ जी फिर काटने के लिए वहाँ पे पूरा एक 25-30 औरतों का एक हमने स्कूल खोला हुआ है। ठीक है जी, पहले उनको सिखाते हैं, हाँ जी फिर उनसे काम करवाते हैं। हाँ जी, कुछ बुजुर्ग औरतें हैं उनको सिखाती हैं, टीचर हैं उनकी, ठीक है जी, और वहीं खड्डियाँ लगवा दी हैं। ठीक है जी, तो अब पूरा एक पाठशाला खुल गई है वहाँ पे, हाँ जी उस पाठशाला में ये काम होता है। तो ठीक सारा है। कपड़ा जो बन के आया है हमारी अपनी कपास का, हाँ जी कतवा करके खड्डियों पे बुन करके, हाँ जी ये बहुत ही एक समझो कोई ऐसा काम है जिसके अंदर में जो लोग बिल्कुल मरने के कगार पे थे, हाँ जी खात्मे के कगार पे थे, हाँ जी, दोबारा जिंदा हो गए। ठीक है जी, वो स्किल, वो लोग, वो खड्डी वाले हाँ जी। हैं, वो जुड़ा है, रोजगार मिल गया उन्हें। रोजगार मिल गया। रोजगार, खाली रोजगार नहीं, उनको एक किस्म का एक ज़िंदगी का एक पर्पज मिल गया दोबारा, उनको बिल्कुल ठीक है। जीने का सहारा मिल गया उनको। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਾਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਲ ਬਾਗ ਦੀ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੇਹੂੰ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਪਾਸ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? हमने वैसे तो हमारे पास 50 एकड़ का खेत है, ਹਾਂਜੀ और पूरा जो खेत है पूरा ही जैविक है। ਹਾਂਜੀ पर ये जो जिस ज़मीन में हम बैठे हैं यहाँ पे, ਹਾਂਜੀ ये 12 एकड़ है। 12 ਏਕੜ ਹੈ। ये 12 एकड़ का जो ज़मीन है, इसको हम लोग एक फूड पार्क बनाना चाहते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, फूड पार्क का कंसेप्ट ये है कि जो चीज़ें भी हमारे को एक इंसान के ਹਾਂਜੀ खाने पीने ਖਾਣੇ के ਪੀਣੇ लिए ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ज़रूरत आएंगी, वो चीज़ें सब हम यहाँ पैदा करें। चाहे सब्जियाँ हैं, चाहे हाँ जी। फ्रूट हैं, चाहे वो अनाज हैं, ਹਾਂਜੀ चाहे वो कल मिर्च मसाले हैं, ਹਾਂਜੀ हैं, वो भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। ਹਾਂਜੀ हर चीज़ ਹਾਂਜੀ हम यहाँ कोशिश करेंगे पैदा करने के लिए, ये हमारा प्रयास है। जो दूसरी हमारी बड़ी ज़मीन है वहाँ पे हम जो है अपनी जो गौशाला के लिए गाय है, गाय के लिए चारा, ਹਾਂਜੀ ठीक है नहीं, ਹਾਂਜੀ और दूसरी मोटी फसलें पैदा करते हैं वहाँ पे। वहाँ पर ही, हाँ, ठीक है आप जैसे चना है, ਹਾਂਜੀ गेहूँ है, ਹਾਂਜੀ सरसों है, ਹਾਂਜੀ उसकी फसल करते हैं, है वो भी सब जैविक। ਸਭੀ ਜੈਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ? डॉक्टर साहब, इस टाइम हमारे पास जो है ना, आप समझो कि भाई कपास का बीज RG8 और LDL 949, और गेहूँ, चना, सरसों, तारा मीरा, और कोशिश करेंगे हम थोड़ा इनका तेल भी तैयार करवाएं इस बार। आलू की फसल, गन्ना बीज के लिए, और गन्ने का गुड़ बनवाएंगे अभी, वो हमारे पास में तैयार होगा। जौ, राई, सब्जियां, फ्रूट, और ये सब चीज़ें जो है अभी इस बार हमारे प्रयास में शामिल हैं, और हम हर बार इसमें आइटमें बढ़ाते जाएंगे। जैसे अभी इस बार हमने जीरा, धनिया, अजवाइन, केसर, ये सब जो खेती कर रखी है हमने, ये भी थोड़े दिनों में तैयार हो जाएंगी। तो हम हर बार 5 से 10 आइटम ऐड कर जाएंगे। तो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो बाज़ार में मिलती है और हमारे पास नहीं मिलती। खाली नमक और छोटी मोटी चीज़ें छोड़ करके बाकी आपको बाज़ार में नहीं पड़ेगी, सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ਇਹ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? हमारे यहाँ पे 4-5 महीने से आ रहे हैं, और हमको इस एरिया में रहते हुए 14 साल हो गए हैं। मैं रिफाइनरी में काम करता हूँ, हाँ जी, और 14 साल हैं, लेकिन 4-6 महीने पहले हमको गांधी जी के ये सब के बारे में पता चला, तो तब से हमने आना शुरू किया, और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और पूरा जो है ये कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, हाँ जी, और ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। हम आते हैं तो हमारे सामने खेत से तोड़ के जो है ये हमको लेके आते हैं, और इस पूरे एरिया में कहीं भी ऐसा है नहीं, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और हम चाहते हैं कि ये ऐसा चलता रहे, जिससे लोगों में थोड़ा अवेयरनेस भी होगा, हाँ जी, और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, और ताज़ी भी है। अभी हमारी बेटी अभी पिछले महीने दिल्ली से आई थी, हाँ जी, तो मैं सब्ज़ी लेने आया था संडे को, तो कुछ सब्जियां हमने उसको भी दे दी। ठीक है जी, तो वो जब वहाँ बनाई सब्जी, तो इसका टेस्ट उसने कहा कि पहले जो हम आलू मटर की सब्ज़ी बनाते थे उससे कुछ अलग लगा, क्या कुछ सब्ज़ी डिफरेंट थी क्या? ठीक है तो मैंने कहा हाँ, ये डिफरेंट थी। ये एक ऑर्गेनिक फार्म है यहाँ पे नियर बाई,
गांधी जी के उसमें चल रहा है। और गोरखा भी जो है यहाँ बहुत मेहनत करता है। यार जिस तरह कपड़ा पे जी, कपड़ा भी आप यूज करके देखिए जी। हाँ जी, हमने आज लिया है, अभी इन्होंने पिछले हफ्ते से ही यहाँ पे लगाया है इसकी स्टॉल। तो कपड़ा काफ़ी अच्छा लगा और वाइफ भी हमारी जो है ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग किया हुआ है, तो इनको कपड़े की एक फ़र्क भी है। तो इन्होंने भी बताया, और जैसा कि गांधी जी ने भी पूरा एक्सप्लेन किया कि ये जो कपड़ा जो बना हुआ है यहीं पे जो कॉटन होता था, जब हम सर्दियों में आते थे ना, तो यहाँ पे जो कॉटन होता था उसी कॉटन को इन्होंने पूरा डेवलप करके इस फॉर्म तक लेके आए हैं। और जो इनकी परख है, जो ये और ये खुद भी घर में बुटीक का काम करती हैं, तो उसके पॉइंट के बेस पे इन्होंने पूरा इसको देखा और बोला कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है। तो आज हमने ये कपड़ा लिया भी है, इसका एक कुर्ता बनेगा इसका। और बाकी आप इनसे भी थोड़ा, आप घर में सब्जियां बनाते हैं जहाँ से ले जाकर खरीद कर, तो बाजार से लेते हैं, और इन सब्जियों से ये सब्जियां हमें बहुत अच्छी लगी। मतलब कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये एक कुदरती रूप में पैदा की गई है, कोई इसमें केमिकल नहीं है, ये सब चीज़ें। और कुकिंग भी इसमें जल्दी होती है, फास्ट बनता है खाना। जी। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਬੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਜੈਵਿਕ खेती ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ जी। बहुत बढ़िया बात आपने करी। ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ऐसा कि ये रोज़ मेरे साथ होता है। मेरे घर के मेंबर सोचते हैं मैं पागल हो गया हूँ, ठीक है नहीं। सच्चाई बात यह है कि वो सोचते हैं कि भाई जो है ये इतना बड़ा अफसर था, हाँ जी, ठीक है, कई लाखों रुपए की इसकी नौकरी थी, हाँ जी, बहुत मोटा इसका काम था, हाँ जी, और प्रेसिडेंट था बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल, कहीं दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैं, एक में फाइनेंस का हेड रहा, एक में मैं प्रेसिडेंट रहा। हाँ जी, तो वहाँ से छोड़ के हाँ ये जी, ज़मीन पे जाके बैठ गया और जो है मजदूरों के साथ में माथापच्ची कर रहा, हाँ जी, ठीक है नहीं। इसका मतलब ये आदमी का कुछ हाँ जी, बैलेंस बिगड़ गया। अच्छा जी, ये ऐसा मेरे नज़दीक परिवार के बंदे ऐसे सोचते हैं कुछ, हाँ जी, ठीक है? और धीरे धीरे उनको यकीन आ रहा है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो इसका प्रयास है हाँ ये जी, प्रयास ठीक है। हाँ जी, पर मेरी पत्नी, हाँ जी, मेरे पिता, हाँ मेरे जी। मित्र दोस्त हाँ जी, मेरे साथ खड़े हैं, हाँ जी, काफिला आगे बढ़ते जाएगा। हाँ जी। जब आप सब्जियां लेके जाते हो फिर तो इस तो मानते होंगे जी भी अच्छी है जी। बिल्कुल, ऐसे तो मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं हाँ जी, अभी वो मेरे को फ़ोन करने चालू हो गए हैं। हाँ जी, मेरे एक रिश्तेदार है यहाँ पे, मेरी मासी के बेटे रहते हैं यहाँ पे सिरसा में। हाँ जी, तो कुछ दिन पहले फ़ोन आया कि उनकी पत्नी को कुछ स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, ठीक है, कि उनको देसी कपास की और कपड़ा बिल्कुल चाहिए। ऑर्गेनिक कपड़ा अच्छा जी, जो नेचुरली बना हुआ है हाँ वो जी। चाहिए। अच्छा जी, डॉक्टर ने बोला स्किन को उसी से ठीक होएगी, नहीं ठीक होएगी। ठीक है जी, अगर ये दूसरा कोई मिक्स कपड़ा पहनते रहेंगे, हाँ जी, कुछ भी लगाएं, हाँ जी, नहीं ठीक होएगी। ठीक है जी, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अपने पास इंतजाम है, अच्छा जी, ठीक है नहीं। तो देखिए ऐसे धीरे धीरे अब मेरे पास ऐसा काफिला बढ़ते आ रहा है। अच्छा जी, कुछ लोग मेरे गेहूँ के लिए फ़ोन कर रहे हैं, हाँ जी, ठीक है नहीं, कि भाई हमारे लिए रखना 5 क्विंटल 7 क्विंटल 2 क्विंटल जितना भी है। ठीक है जी, तो अभी मेरे को लगता है और हमको 2 साल लग जाएंगे हाँ जी, हाँ जी, इसको पूरा कामयाब होने में। ठीक है पर ये बिल्कुल अच्छी तरह से प्रयास हमारा काम होगा, बाकी फिर आप लोगों का, आप भाइयों का साथ रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। किसानों ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मेरा किसानों को यही एक जो है संदेश है, मैसेज है कि भाइयों हम गुमराह ना हो, हाँ जी, हम लोगों की बात ना सुने, अपने दिमाग से काम लें। ठीक है, हमारे बुजुर्ग जो करते थे वो मूर्ख नहीं थे, हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा समझ आते हैं, ठीक है जी, वो सारे देसी खेती करते थे। हाँ जी, हम वापस हाँ जी, अपनी देसी खेती पर आए। अगर सारे नहीं कर सकते आप, हाँ जी, मुश्किल है, हाँ जी, तो 10 एकड़ में 1 एकड़ में करो, हाँ जी, 2 में जाओ, हाँ जी, 3 में जाओ, 4 में जाओ, कोई बात नहीं। हाँ जी, 5 साल लगने दो, 10 साल लगने दो, हाँ जी, वापस आओ, हाँ जी, घर की तरफ वापस लौटो, कनाडा की तरफ मत जाओ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।